Dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss what is the calibration and how we can calibrate the mechanical, electrical, electronic, different type of the instruments. So first we will see that what is the calibration. Calibration is the standardization. In the general term, we can say calibration is the standardization, that is the comparison between a known measurement, the standard, and the measurement using our instrument that we are using. Accuracy of the standard should be 10 times the accuracy of the measuring device being tested. जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी 10 टाइम के लगभग ज़्यादा होनी चाहिए जिस डिवाइस से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में. तो कैलिब्रेशन इज नीडेड बिकॉज टू एंश्योर द रिलायबिलिटी इन द इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में लेस नंबर ऑफ फेलियर हों. टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए वी डू द कैलिब्रेशन. For getting the consistent output, we do the calibration. So following are the reasons for doing the calibration. It is not the desirable in industries, but it is the necessity that calibration should be done of all the instruments in the industry so that they can work for a long time. Now we will see that there are the several type of the instruments. First we will see that there can be the mechanical type of the instruments. So like the accelerometer for measurement of the vibrations, load cell, weight measurements के लिए micrometers, verniers, height gauge for measuring the length, scale and balances, weight measurement, and boilers for power plant. So in these such type of the mechanical instrument, calibration is essential in all type of the mechanical instruments. Even in the electrical instruments can be the like the current, frequency, resistance, and voltage measurement instrument. So all these type of the instrument, ammeter, voltmeter, insulation tester for measurement of the insulation, and multimeters are the instrument that can measure the combinedly the ammeter, current, voltage, frequency. इन सब के लिए हम इनको भी कैलिब्रेट हम करते हैं सो जिससे कि ये एक्यूरेट रीडिंग दे. इसी तरह से इस ऑसिलोस्कोप जिनको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिस पर हम किसी वेवफॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं. स्टेबलाइजर जो हम घरों में पावर है वो हमारे एसी वगैरह में कंप्यूटर में एक कांस्टेंट पावर को अचीव करने के लिए वी यूज द स्टेबलाइजर. मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक द वेंटिलेटर्स हैं, जो हमारे वेंटिलेटर्स जिनको कि आजकल हमने कोविड के समय देखा कि हमारे वेंटिलेटर्स की काफ़ी ज़्यादा नीड हुई, तो वेंटिलेटर्स. देन देयर कैन बी द ईसीजी मशीन्स, ईसीजी को मेजर करने के लिए, तो ऑल शुड बी कैलिब्रेटेड. तो वी कैन से इवन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑल टाइप द इंस्ट्रूमेंट्स नीड द कैलिब्रेशन. Now we will see about the survey. Surveying is the first step of starting a new civil engineering project. जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको सर्वेइंग की जरूरत पड़ती है. It is the technique of determining the relative position of different features of the surface of the earth by means of direct or indirect measurement. तो हम इससे क्या करते हैं, डिफरेंट फीचर्स को जो अर्थ जिसको हम यूज करने वाले उनको फाइंड आउट करते हैं और रिप्रेजेंट देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर नोन एज प्लान और मैप. तो दैट इज कॉल्ड द सर्वे. तो basically there are the several type of instruments used for surveying purpose.
Some are the like total stations, GPS receivers, Prism 3D scanners, digital labels, dumpy label, surveying software. These are the instruments that are utilized for the surveying purpose. Labeling is the one branch of survey. Important है कि हम किसी चीज का लेबल करें सरफेस का. लेबलिंग में हम द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू बी एस्टेब्लिश और वेरीफाई और मेजर द हाइट ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट रिलेटिव टू ए डेटा. एक पर्टिकुलर हाइट पर हमको किसी चीज को सब चीजों को रखना, दैट इज कॉल्ड द लेबलिंग. तो लेबलिंग के लिए जो सबसे हमारा पुराना इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज द ऑटो लेबल टाइप का इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड द डंपी लेबल. तो डंपी लेवल का जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, दैट इज डन बाय द सिविल इंजीनियर विलियम ग्रेवेट ने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया. 1832 में दे हैव डेवलप द डंपी लेवल. एंड डंपी लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड ए बिल्डर लेवल और ऑटोमेटिक लेवल भी हम इसको बोलते हैं. ये हमारा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लेंस यूज करते हैं फॉर लेवलिंग पर्पजेज, और एक टेलीस्कोप यूज करते हैं. टेलीस्कोप के दोनों ट्यूब पर हम दो लेंस को माउंट कर देते हैं जिनको स्क्रू ड्राइवर से हम हैंडल कर सकते हैं. और टेलीस्कोप जो डंपी लेवल का होता है, दैट कैन बी रोटेट इन एक्स प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन पे इसको रोटेट किया जा सकता है. So that is the dumpy level. We can see like it is the dumpy level that is using for the labeling purpose. And dumpy level is used in surveying purpose because the purpose of to determine the height and distance among the different locations, to determine the relative distance among different locations of the land. For that purpose we use the dumpy level. Advantage, it is a very easy instruments, construction is very easy, very few movable parts, and high optical power, that we use the dumpy level. But the some accuracy is not much more in the dumpy level. So the new development is the auto level, that is the improvement of the dumpy level. Auto level is also the labeling instruments used in the for the surveying purpose. इसको भी हम surveying purpose के लिए यूज करते हैं. Easy of use of auto level has made it popular among surveyors. इसको काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं. Easy going है, मॉडर्न लेवल इंस्ट्रूमेंट्स है. तो इसमें हम बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में कंपनसेटर भी होता है जो कि अपना आप ही एडजस्ट कर लेता है कि कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है. बेसिकली इट कंटेन द थ्री टाइप ऑफ जो लेंस है इसमें यूज होते हैं इस ऑटो लेवल में. दैट इज द एज शोन इन द टेलीस्कोप. इस तरह के हम तीन, ये दैट इज द ऑटो लेवल, ये हमारा ऑटो लेवल का इंस्ट्रूमेंट है. तो एडवांटेज, वेरी इजी टू यूज होता है, एडजस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. बबल कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी साइड, एनी एंगल, विद एनी स्क्रू, एनी थ्री स्क्रूज अवेलेबल से हम इसको सेट कर सकते हैं. ऑटो लेवल इंटरनल कंपनसेटर मैकेनिज्म जो कि हमारी लाइन ऑफ साइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है. और मेजरमेंट एक्यूरेसी हमारी हायर होती है डंपी लेवल के कंपैरिजन में. ऑटो लेवल रिजल्ट आर वेरी रिलायबल होते हैं, इजी होता है यूज करने में. तो दैट इज द देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ द ऑटो लेवल. But there is a vertical angle cannot be measured with the auto level. और also the horizontal जो angles हैं वो हमारे कुछ less accuracy से measure होते हैं auto level में. So for that purpose the new instrument that is used is the digital levels. Digital level is the new instrument that is the latest, or uses the digital electronic image processor using a charge coupled CCD camera for determining height and distance. इसमें हम CCD कैमरा को यूज करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक को यूज करते हैं, और इसको हम इंटरफेस कर देते हैं किसी एक पीसी के साथ. हम इंटरफेस कर देते हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर के ऊपर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो दैट इज द एडवांटेज. डाटा कैन बी ट्रांसफर टू कंप्यूटर, डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है कंप्यूटर में इसके थ्रू. एरर इन राइटिंग ऑफ डाटा इन कैलकुलेशन कैन बी मिनिमाइज्ड हो सकती है.
और इट नीड द वन ड्रॉबैक ऑफ द डिजिटल लेवल इज दैट द इट नीड द क्लियर एंड बेटर इल्यूमिनेटेड एरिया जो ट्रेवलिंग हैंस नॉट यूजफुल इन अगर क्लाउडी एरिया है, क्लाउडी वेदर है, तो वहां पर ये हमारा इंस्ट्रूमेंट यूजफुल नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।